Greetings to everyone who have joined us from around the world for conversation on Paradigm of Oneness. These series of 5 conversations are a prelude to the exhibition of artworks, Expressions of Oneness by Baba Nanak, Sheikh Farid and Kabir Das. As we understand from them, Paradigm of Oneness unifies people, genders, nature and universe into one whole. The exhibition is curated by Sangrah Sacha Sauda and supported by the Sikh Chamber of Commerce. We would like to take you on a journey of making of the exhibition with an invitation to visit us at the Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, New Delhi between the 24th to the 28th of November. Once again, a warm welcome to everyone. Paradigm of Oneness is my interpretation of sayings or shabads of Baba Nanak, Sheikh Farid and Kabir Das. It's an attempt to deconstruct, to simplify shabads and understand the analogy that is hidden. जिस संग्रह में आने के बाद हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। पैंडेमिक के समय दिक्कतें बहुत आई और बहुत सारी दिक्कतों का हमने सामना किया, जिससे हम कल्चरल रिस्पॉन्सिबल भी बने, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के साथ काम किया और उनको साथ लेकर चले। जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह को बहुत साफ रखते हैं और खुद भी पाक साफ रहते हैं और अपने सर को ढाक करके रखते हैं। पत्तियों के साथ साथ एक इबादत भी फूलों के साथ दिख रही है। Sacha Sauda, according to him, is or the ethical trait is nothing but exchange of knowledge. It's an act of sharing. Good evening, Sat Shri Akal, Adab, Namaste to everyone who has joined us. Last week we had a discussion with Dr. Alka Pandey on oneness of art, craft and aesthetics, and according to her, rasa or the essence of a craft or art with bhava, the expression from heart is what makes real oneness of art aesthetics. Today's session is titled Oneness as a Culture and Honesty in Making and explores oneness across borders, across ages, across time zones and professions. It tries to comprehend the ecstasy that translated into poetry of Baba Nanak 500 years back and still takes one to the same paradigm of oneness. Each culture, people, experiences, place have a message for us to pass through, and we try to understand through our esteemed panelists their realizations. It's a journey beyond faith, a journey into human values, a journey to nature, a journey that connects us all. We will look for connectedness as an author, as an actor, storyteller, and comprehend fragments of what he creates and what's created already with an honesty of mind, body, and soul. As we start the conversation, I request you to put down the questions and post them in chat
box of webcast on Sangre website or the YouTube channel. It's an honor to conduct today's session and have some insights from experiences of our highly esteemed panelist. I'm Dr. Kalra, design academician and ardent lover of crafts. Being grounded and understanding cultural aesthetics is my passion. Today, it's my honor to introduce Harun Khalid. As an academic background in anthropology, he has been a freelance journalist who has written over 350 articles for numerous publications. He's traveled extensively around Pakistan, has written about minority rights, folk traditions, politicization of history and heritage, nationalism and identity, and several other topics. Harun is author of 4 books: A White Trail, In Search of Shiva, Imagining Lahore, with his bestseller Walking with Nanak. An educator, Harun has been a consultant with UNESCO and World Wide Fund for Nature. He is currently based in Toronto, where he is working on his latest novel. A warm welcome, Harunji. We also have with us Kuljit Singh, author, actor, director, teacher, curator, and many more. Producer known for his restrained performance of films like Margarita with a Straw and Amu, Kuljit is a founder and creative director of Atelier Theatre, a Delhi-based theatre company. He has taught for a decade in English department of Delhi University and has dedicated himself time to theatre and performing art. His MPhil thesis was on history of theatre and is presently working on doctoral thesis, which is continuation of study on campus theatre. His vast experience of performing includes several theatre productions under the direction of M.K. Raina, Avtar Sahni, Surendra Sharma, Royston Abel, Anna Helena MacLean, and V. Sharma, as well as acting in Shonali Bose's award-winning film Amu and Margarita with a Straw, Imtiaz Ali's Lockstar, and Sharad Nigam's Interval. Welcome you, Kuljit ji, to Conversations on Paradigm of Oneness. Thank you so much. Thanks a lot. I would now like to start a background that connects both our speakers today. Harun, my first question is with you. I first would like to congratulate for your book, and that made me travel through time, especially feeling that Baba Nanak is composing in places which I've never visited. It was almost like visiting with you to those places. My question definitely starts with the same context. Why you took Nanak as your subject? Nanak ही क्यों? पंजाब में और भी शाह पीर हुए हैं, but you chose Nanak. So what is the background to it? Gee, thank you so much for those kind words, and thank you for that question. इसमें I think एक जो बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जब मैंने गुरु नानक जी के ऊपर पढ़ना शुरू किया and when I wanted to write about him, उस टाइम पाकिस्तान में इतनी सिखिज्म के बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे, गुरु नानक देव जी के बारे में बात नहीं कर रहे थे. अब ऑफ कोर्स हालात काफी चेंज हो गए हैं विद गुरुद्वारा करतारपुर के बाद. उस टाइम ये आज से 10-15 साल पुरानी बात है, तो तब बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी और एक अंडरस्टैंडिंग थी. अगर आप पाकिस्तानी पंजाब में, अगर आप पंजाब में बड़े होते हैं एंड यू आइडेंटिफाई एज अ पंजाबी, तो आप फिर जो सिख हिस्ट्री है और जो गुरु नानक की हिस्ट्री है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि पाकिस्तान में उसको इग्नोर किया जाता है और डिलिबरेट उसकी एक पूरी एक मूवमेंट है, व्हाई दैट्स डन फ्रॉम द स्टेट. तो वो मेरे एक वो क्यूरियोसिटी थी कि एक इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारी धरती की, हमारे लोगों की. Why are we not talking about that history? So I think for me, the reason why I wanted to explore Guru Nanak was essentially to learn more about myself, to learn more about myself as a Punjabi, and to learn more about my own history. And I think then when you discover more about Guru Nanak, आपकी understanding मेरी जो है वो understanding इस तरह बढ़ी है कि अगर आप पंजाबी जुबान को आज देखें या पंजाबी कल्चर को आज देखें तो उसके ऊपर जितना बड़ा इन्फ्लुएंस गुरु नानक का है, I mean it's so basically it'll be unfair to talk about the history of Punjab and the history of Punjabi literature and Punjabi language and Punjabi culture without looking at the role that Guru Nanak played.
in creating that culture. So मेरे लिए तो एक जो क्वेश्चन जिसको लोग ये भी पूछते हैं कि आप एक मुसलमान होके why are you looking at Sikh history? So I don't really think of that question. That question actually मुझे वो question इतना शायद समझ भी नहीं आता, क्योंकि मैं गुरु नानक को अपनी हिस्ट्री समझता हूँ और मैं पूरी सिख हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री समझता हूँ. वो मेरे लिए कोई अदर हिस्ट्री नहीं है. So that's essentially a short answer to a very complicated question. Okay. Another complex question is coming to Kuljit ji now. You've written extensively about Sikh philosophy, dastans on gurus, Sikh gurus, and interpretation for the contemporary world. I am curious to know, आपका नानक कौन है? Who's your नानक? Thank you so much. How do you define that. Nanak? Well, for me, Nanak arrives when the other is gone. The idea of other, when you start dismissing that idea, I think that's not the right word to this. When you start understanding that there is no other, you start feeling Nanak. And thank you so much for this line. You start feeling Nanak actually, because for me Nanak is not essentially a human form. Nanak is also an idea. So when I start connecting with people who work with me, people who I meet, people who I love, I think Nanak arrives. So my Nanak is the moment when I start connecting with the idea of the other. And then the other subsides and it becomes, as your title also says, oneness as a culture. I'm a theatre practitioner, so it becomes essential for me to look at this idea because it's a teamwork. I don't deal with a solo performance. There is a lights person, there is a sounds person, somebody is designing the costumes, somebody is also doing the music, somebody is also working backstage. Just imagine when you're producing a play, they all are Nanaks together because everyone is contributing towards one idea, which is the theatre production. I mean, I'm not reducing Nanak to that, but on several levels I can see Nanak, not necessarily as a mystic. He was a mystic, he is a mystic, but otherwise also in day-to-day life, when you start understanding that there is no other, Nanak arrives. So my Nanak is when there is no other. That's a fantastic line, Kuljit ji, that Nanak is when there's no other, everyone is other, and we are part of other. Harun, coming back to you. I think you've visited many places to do your book, especially with your guide, Iqbal ji. And did you find something specific in those places that demarcates them? Those, I mean, specifically the places where Guru Nanak had visited 500 years back, those that demarcates them from any other town. कुछ खास पहचान है उन जगहों की? जी, so Guru Nanak की अगर आप देखें तो पाकिस्तान में I think around 70, 80 or around 100 गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पे Guru Nanak physically went, and there are some stories that are associated with Guru Nanak. And then those gurdwaras were later constructed. I think most of them were constructed during Ranjit Singh's time. तो उससे पहले शायद वो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी. उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई and then became a big gurdwara. And of course after partition, as the majority of the Sikh community from Punjab left, उसके बाद जो है वो काफी गुरुद्वारे हैं उनकी हालात काफी खराब होना शुरू हो गए. तो अगर आप ब्रॉडली देखेंगे पाकिस्तान में जो गुरु नानक के गुरुद्वारे हैं उनकी आई थिंक 3 मेन कैटेगरीज आती हैं. एक वो हैं जो रेनोवेटेड हैं, जो फुली फंक्शनल हैं, जैसे ननकाना साहब में बहुत से गुरुद्वारे हैं. सच्चा सौदा है बड़ा मशहूर गुरुद्वारा जो फुली रेनोवेटेड है. उसी तरह करतारपुर जो है वो रेनोवेटेड है. इनकी मिकदार बहुत कम है. ये आई थिंक 10, 12 या 20 शायद गुरुद्वारे ऐसे हैं जो कि फुली रेनोवेटेड हैं, जो कि अभी कम्युनिटी वहां पे आती है और पिलग्रिमेज होता है. फिर उसके बाद एक वास्ट जो एक तादाद है, जो मेजॉरिटी ऑफ गुरुद्वारास वो हैं जो कि बिल्कुल ही बुरी हालत है, जिनकी जो तबाह हो चुके हैं, जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज जहाँ पे बन गई हैं, जहाँ पे जिनकी जमीनें बिक चुकी हैं, जहाँ पे कुछ पे मजार बन चुके हैं, कुछ पे घर बन गए हैं, कुछ पे स्कूल बन गए हैं.
वहां पे वो मेजोरिटी जो है वो गुरुद्वारे जो है वो उस तरह के हैं। उसके अंदर फिर आप ऑफ कोर्स मुख्तलिफ, उसके अंदर भी मैं उनको डिफरेंटली कैटेगराइज करता हूँ। एक तरफ जो मैं कैटेगराइज, जो मैंने जो थोड़ी अच्छा जो गुरुद्वारे जो फुली फंक्शनल है वो तो बड़े अच्छे हैं और प्रॉपर्ली रेनोवेटेड है वहां पे, और वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वहां पे इतनी फैसिनेशन नहीं है जो मुझे फैसिनेट करता है एज अ हिस्टोरियन, एंड आल्सो व्हाट आई थिंक रियली रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ majority of Pakistanis, let's say, if I was to sort of make that broad generalization, कि how they interact with Sikh history, I think जो गुरुद्वारा जो renovated नहीं है, I think वहाँ पे काफी आपको interesting stories मिलती हैं। तो एक जो for example मुझे बड़ी interesting story मिली, वो गुरुद्वारा सच्चा सौदा जहाँ पर है एमनाबाद, अब उसको मेरा ख्याल फारूकाबाद कहते हैं। तो वो जो गुरुद्वारा है वो बहुत बड़ा रेनोवेटेड गुरुद्वारा है। तो उसके पीछे एक और छोटा सा गुरुद्वारा है जो रेनोवेटेड नहीं है, जो जिसे है सच्चा खंड, शुगर और गुड़, सच्चा खंड। वो भी, उसकी स्टोरी भी जो है वो गुरुद्वारा सच्चा सौदा के साथ जो है मिलाई जाती है। जब वो गुरुद्वारे की काफी बुरी हालत थी, उसके दरख्त थे और वो अंदर जो है उसके पुराने फ्रेस्कोस भी फेड हो रहे थे, बिल्डिंग भी काफी बुरी हालत में थी, जिससे आप इमेजिन करते हैं कि पुरानी जो है एक इमारत होगी। तो वहां पे उधर क्या हुआ कि वहां पे एक मजार बन गया। एक मुसलमान सूफी जो है पिछले आई थिंक 20-30 साल पहले वो आए, उन्होंने देखा कि पुरानी एक बिल्डिंग है, तो उन्होंने वहां पे अपना एक जो है वो जोग रख दिया है, जो भी जिससे भी आपके हैं, तो वहां पे उन्होंने अपना एक मजार बना दिया। वो अब फौत हो गए हैं, तो उनकी जो कब्र है वो वहां पे उसके सामने है। तो वो भी अब तो इन मुस्लिम सॉर्ट ऑफ आप समझ लें आइकनोग्राफी के अंदर वो भी एक मजार जो है वो सेक्रेड जगह बन गई है। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे उनके जो लोकल जो थे वो उस मुसलमान सूफी के मानने वाले थे, वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने वैसे उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की तारीख क्या है? तो उनमें से उनका एक जो मुरीद है, जो कि अगर आप कन्वेंशनल सेंस में बात करें तो एक अनएजुकेटेड या अनलेटर्ड, फॉर्मल एजुकेशन जिनकी नहीं है, वैसे अनलेटर्ड या अनएजुकेटेड तो एक उस तरह नहीं थे। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुद्वारा जो है ये गुरु नानक के साथ इसकी स्टोरी जुड़ती है, और यहाँ पे जो है उन्होंने मुझे सच्चा सौदा का वाकया बताया, और मुझे उन्होंने फिर एंड में जो है उन्होंने कहा जी गुरु नानक जो है वो अल्लाह के आदमी थे और बड़े नेक आदमी थे, और माशाल्लाह इस तरह की सारी जो है वो बातें हुई। तो मुझे वो बड़ा फैसिनेट किया कि एक शख्स जो शायद जिनकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, तो उन्होंने ये गुरु नानक की स्टोरी जो है वो कहाँ से सुनी, उनके पास ये गुरुद्वारे की स्टोरी कहाँ से आई। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग, और अभी भी उस मजार में वो, इवन दो कि वो मुसलमान सूफी मजार बनाया हुआ है, उसकी वो एक सीक्रेट जो उसको एसोसिएट करते हैं गुरु नानक के साथ, वो अभी भी एक रवायत उसकी जो है वो जिंदा है। और मुझे वही लगता है कि ये सीना बसीना जो है रवायात कुछ जो है उस इलाके की वो कैरी फॉरवर्ड की हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये आपको फोक हिस्ट्री के अंदर, लोगों के फोक रवैयों के अंदर आपको इस तरह की बहुत सी स्टोरीज मिलती हैं। इसी तरह करतारपुर के अंदर जब बिफोर इट वाज रेनोवेटेड मुझे इस तरह की स्टोरीज मिली। सियालकोट बेड़ी साहब में भी इस तरह की रवायत थी कि सीना बसीना जो है वो एक एसोसिएशन गुरु नानक के साथ, द आइडिया दैट ही इज अ sacred personality, not any different from another Sufi saint. So those stories you find, which are absolutely fascinating. Okay, interesting to know that Guru Nanak is people's sacred man, in people of different faiths and different cultures also. Kuljiti, we had a short conversation in past regarding how farming for Guru Nanak was something more symbolic than just tilling the soil. I would like to share your views on making with hand, because that's a discussion we had, and honesty towards it. क्या बाबा नानक खुद के हाथ के काम की शिद्दत के बारे में, did he have a metaphor to that? हाँ बिल्कुल, आप अगर बाबा नानक की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा भी ओवरव्यू देखें तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स, जिसको हम उदासी बोलते हैं, अपनी ट्रैवल्स के बाद जब भी वापस आते थे तो हमेशा उन्होंने कर्म को, काम को, अपने हाथ से किए गए काम को बहुत तवज्जो दी। और वो फार्मर थे, मतलब वो फार्मिंग करते थे। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, हमें उनके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो ये कई बार सामने आता है। अब उनकी जो बेसिक टीचिंग्स हम देखते हैं, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। I mean, if you look at those three basic ideals which Baba Nanak is trying to share with us, उसमें जो सबसे पहले है कीर्त करने पर कितना जोर है। मतलब वो ऐसा कह ही नहीं रहे कि छोड़ के भाग जाइए। बाबा नानक इज यूनिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपको
पर्वतों में जाकर, हिमालय में जाकर कुछ नहीं करना है। तो आपको रहना यहीं पर है जहां पर आप हैं दुनिया के साथ में, और काम करना है। तो आई थिंक वो जो आइडिया ऑफ कीर्त करो है, दैट दैट हैज लेट द कम्युनिटी टू बी इंडस्ट्रियस। मतलब मैं जब देखता हूँ पंजाबियों को, तो मुझे दिखते हैं कि बहुत मेहनती लोग हैं। तो वो किसान होना कोई आम बात नहीं है, किसान होना बहुत मेहनत का सबब है। तो मुझे लगता है कई बार कि वो कहाँ से पूरी लीनिए जा रही है। आई थिंक जो पहली पहली टीचिंग है बाबा नानक की कीर्त करने की, ये वहीं से आ रही है कि मेहनत से कमाइए। और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कमाया है वो खुद मत खाइए, खुद भी खाइए, शेयर कीजिए। वंड छकने का जो पूरा आइडिया है, जिसको आज हम सोशलिस्ट आइडिया भी मानते हैं, और हमें लगता है कि वो शेयरिंग वाली जो पूरी बातचीत है, पूरा जो डिस्कोर्स है, वो 100-150 साल पुरानी, 300 साल पुरानी नहीं बात है। ये तो फिर बाबा नानक तो बहुत पहले से ही उस बात को लेकर चल रहे हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो तीसरा एलिमेंट है उसके बाद नाम जपने का, वो एक कोर कॉन्सेप्ट है, वो एक अपने आप में लंबा चौड़ा डिस्कोर्स है, जिसको बाबा नानक से आए पुराने सूफी भी बात कर चुके हैं, और बाबा नानक उसको फॉर्मलाइज करते हैं और उसको कॉन्क्रिटाइज करके 3 बहुत ही आसान तरीके जीवन जीने के हमें देते हैं। सबसे पहले कहते हैं काम करिए, जो काम से कमाएं, और काम भी ऐसा करिए जिसमें चोरी चकारी ना हो, मेहनत से काम करिए। तो वहां पर किसानी भी खड़ी है, खुद भी किसान थे, किसानी करते रहे। उसके बाद जो कमाया उसको शेयर करिए। अभी हारून सच्चा सौदा की बात कर रहे थे, तो उसके पीछे तो पूरी एक कहानी है सच्चा सौदा की। पिताजी ने भेजा था दूसरे गांव कमाने के लिए, वो 20 रुपए बाबा नानक के आज तक खत्म नहीं हुए। हजारों गुरुद्वारों में वो 20 रुपए का लंगर अभी भी चल रहा है। सो वी आर सो ब्लेस्ड दैट बाबा नानक हैज गिवन अस दोस 20 रुपीज। वो 20 रुपए आज तक खत्म नहीं हुए, और इंशाअल्लाह वो कभी खत्म होंगे भी नहीं, वो चलते रहेंगे। और वो मानवता के लिए, जिसके पेट में अन्न नहीं है, उसके लिए हमेशा बने रहेंगे। और उसके बाद जब पेट भर जाए तो फिर सिमरन कीजिए, फिर प्रभु के गुण गाएं और खुश रहें। आई थिंक दिस इज हाउ आई लुक एट बाबा नानक आइडिया विद जमीन। वो कितना कनेक्शन है जमीन से, क्योंकि बांट क्या सकते हैं आप जो उपजा सकते हैं। और उसके बाद जब आपके कनेक्शंस वहाँ, इसका अगर आप तीनों एलिमेंट्स को और थोड़े से परतें खोलें, तो ये तीनों चीजें वननेस की तरफ आपको डायरेक्ट करती हैं। ये तीनों चीजें इवेंचुअली आपको वननेस की तरफ लेकर जाती हैं। तो कई बार मुझे लगता है इतना कॉम्प्लेक्स येट इतना सिंपल आइडिया है बाबा नानक का। जी। Agreed. Because of that act of sharing, one छक्को शायद वो 20 रुपए आज तक खत्म नहीं हुए. That's so beautifully said. Harun, I have read about you that when you visited these places with your guide, you had some kind of special experiences which are beyond interpretations. Would you like to relate where this kind of experience, special experience, start for the first time, or any specific experience you want to relate to us where you felt certain special vibes at certain places? जी, वो काफी इंटरेस्टिंग था कि मेरे साथ जब मैं पहली बार ननकाना साहब गया, I could actually imagine Guru Nanak walking the streets of the city with भाई मर्दाना. तो वो मेरा एक काफी स्पिरिचुअल उसका एक्सपीरियंस था. I think that's perhaps one reason why I became even more fascinated. और मेरे लिए वो भी इंटरेस्टिंग था कि I usually at that point at least didn't have many spiritual experiences. So जो है that became a reason why I wanted to explore this more. फिर जब गुरुद्वारा सच्चा सौदा की हम बात जब अभी गुरु जी भी कर रहे थे, तो वहां पे अब सच्चा सौदा के गुरुद्वारे में अभी भी अंदर उसके कोर्टयार्ड में कुछ पुराना जंगल था जो उस जब वहां पे होता था, जहां पे गुरु नानक देव जी का जो है वो एनकाउंटर होता है स्केटिक्स के साथ. तो उस गुरुद्वारा उस जंगल के थोड़े से दरख्त जो है मैंने अभी भी जो है वो प्रिजर्व किए हुए हैं, वो कोर्टयार्ड के अंदर आपको नजर आते हैं. तो मैंने वैसे ही उस दरख्त, पुराना दरख्त है, 500-600 साल पुराना दरख्त होगा, उससे पुराना दरख्त हो, तो मैंने दरख्त की बाग को मैंने हाथ लगाया. तो आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई वाज बैक एट दैट टाइम जब गुरु नानक देव जी जो हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज दैट होल इंसिडेंट इज हैपनिंग.
आई थिंक इस तरह की चीजें हैं। फिर जब गुरुद्वारा पंजा साहब, जहाँ पे गुरु नानक जो है उनका जो वो हाथ का पंजा है वो उधर रॉक के ऊपर, एंड दैट बिकेम द रीजन व्हाई द गुरुद्वारा इज कॉल्ड पंजा साहब। उधर जब मैंने अपना हाथ उस स्टोन के अंदर रखा, आई फेल्ट लाइक आई वाज टचिंग गुरु नानक's hand, and it was a very and it wasn't a very I mean, because Guru Nanak is such a large than life figure, and he's such a big sort of name, and he's all around us in that sense. But मुझे वो बड़ा एक intimate experience था. Like it wasn't a very scary moment, but it was somebody like I knew very personally, somebody I was very close with, somebody I wasn't scared of. It was a very intimate experience, and I think that was for me one of the most beautiful experiences of doing this work. Okay. Interesting. So I'm sure all of us are taking experience from what you could visualize over there, and that's a pleasure. Kuljit ji, you have been very close to Nanak. For you, he is a person whom you love, whom you live with. So, अगर आपको अपना नानक ढूंढना होता है, आप कैसे? How do you find him? How do you converse with him? सिख ट्रेडिशन ने क्योंकि मैं सिख फैमिली में जन्म लिया, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बचपन से ही हमें सिखाई गई, आई एम श्योर बाकी ट्रेडिशंस में भी होता होगा, आइडिया ऑफ अरदास, प्रे करना। और प्रेयर का मतलब डिमांड नहीं है, प्रेयर का मतलब थैंक्स बोलने की बात है जो दिया गया है। आई थिंक जब नानक साहब से कॉन्वर्ट्स करना हो तो एक तो उनकी बानी, उनकी जो वर्सेस हैं उसमें बहुत मौके मिलते हैं बात करने के। दूसरा मुझे लगता है कि अरदास मदद करती है उस प्रॉक्सिमिटी को रिड्यूस करने में और पास जाने में। जैसे हारून बेबी कह रहे थे कि लार्जर देन लाइफ नानक साहब का एक किरदार है। मुझे बचपन से नानक साहब का किरदार बड़ा लार्जर देन लाइफ लगा नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गुरु नानक देव जी बोलूं तो मैं उनको डिस्टेंस कर देता हूं, क्योंकि देव और जी लगा के बहुत फॉर्मेलिटी में ले आता हूं। तो मैं हमेशा बचपन से प्रेफर करता था नानक। तो घर पे मेरी दादी और मेरे बड़े बोलते थे थोड़ा सा इज्जत से बात करो। मैंने कहा नहीं, इज्जत तो प्यार से होती है ना, तो मैं तो इश्क में हूं, और अगर मैं नानक बोलकर वो प्रॉक्सिमिटी फील कर सकता हूं तो लेट मी कॉल हिम नानक। और मेरा मानना ये है कि जो रियलाइजेशन बाबा नानक की थी, अगर उसके थोड़े बहुत लम्हे हम इर्द गिर्द निभा पाए जैसे हारून साहब ने निभाए हैं और उनको मौका मिला वो सब लम्हों को रियलाइज करने का, आई थिंक बहुत है ये पूरी जिंदगी के लिए। उस सच में उस पेड़ को आई कैन फील दैट हारून, जब आपने उस पेड़ को छुआ होगा तो आपके अंदर क्या रियलाइजेशंस हुई होंगी, वो फीलिंग क्या थी। जब मैं पहले भी कह रहा था कि नानक मेरे लिए बस एक परसोना भर नहीं है, नानक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आई थिंक अब देखिए वो दरख्त के साथ एक वननेस का कनेक्शन बनता है और आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कुछ 500 साल पहले कि कैसे बाबा नानक उन गलियों में घूमते होंगे, बात करते होंगे। और उनका सबसे बड़ा साथी कौन है? भाई मर्दाना। आई मीन शुरुआत में बात करते करते जैसे जसपाल आपने भी पूछा था कि हारून ने नानक साहब का टॉपिक या वो सब्जेक्ट मैटर कैसे पिक किया। मुझे लगता है कितना सिंक्रेटिक किस्म का हमारा कल्चर है ना। और बाबा नानक की जिंदगी ही देख लें, मतलब अगर आइकनोग्राफी भी देखें तो एक तरफ मर्दाना है, दूसरी तरफ बाला है। हिस्टोरियंस माइट डिफर कि बाला थे नहीं थे, खैर वो एक अलग बात है, बट इमेज अभी भी हम जब पिक्टोरियली देखते हैं तो कितना सिंक्रेटिक है। और वो फिर एक किस्म से वो अपने आप में जो फोटोग्राफ है, जो इमेज है, वो हमें लीड करती है वननेस की तरफ ही, कि दो नदियों को, बहती हुई नदियों में से एक और नयापन
निकालने की कोशिश है। इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें से बेस्ट मैं क्या पिक कर सकता हूँ, मेरी आज की ईडियम क्या होगी। मुझे लगता है कि नानक साहब बहुत ही साइंटिफिक टेम्पर के इंसान रहे, और 500 साल पहले जो कह गए कितना रेलेवेंट हमें आज दिखता है। और रेलेवेंट चाहिए हमें, और नया नानक चाहिए। आई मीन नानक वुड बी हैप्पी टू सी अ न्यू नानक being explored by us today, and he would bless us कि तुमने तो मेरी ही बातचीत को एक्सटेंड कर दिया। And when the entire world is fighting over you see burning issues, और उसमें हम कितना कत्लेआम और क्या क्या देख रहे हैं, I think नानक becomes so relevant। वो एक उनकी अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, कुछ नानक साहब की बानी है, ट्रूथ इज हाई, हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग। मुझे लगता है ये बड़ी बड़ी रेलेवेंट बात है, हाँ? कि सच्चे होना तो एक बात है, लेकिन सच्चाई के साथ एक जिंदगी निभा लेना वो उससे भी बड़ी बात है। तो हमारे पास तो पूरे मॉडल्स बने हुए हैं। बाबा नानक की अपनी जिंदगी एक मॉडल है, वो किस किस्म से जी रहे हैं। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि we are Punjabis and we have this great mystic poet, more than guru, a mystic poet who has tried to formulate his ideas through verses to us. Yeah, I think that's what I wish to say this part. Yeah. Okay. I think that's great how to travel 500 years and Nanak ke saath hone ke liye you just have to love and be passionate about him. That was the experience with Harun. That is your experience in present time. I think if you are passionate and want to see him, I think you see him anywhere. Okay, Harun, coming back to you. Oneness, we're discussing oneness. So Nanak, Baba Nanak was quite vocal about oneness of gender. So when we say that there's no scope for any discrimination of any gender, male, female, transgender, anything. Did you look for these kind of connections when you were visiting those places for your research and book? ये जेंडर जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जो कि आपको मिस्टिक पोइट्री और बाबा नानक से आप देख लें, या उसके बाद की भी जो एक उसी रिवायत की जो पोइट्री है, जिसमें मैं शाह हुसैन, बुल्ले शाह को भी डालता हूँ, और बाबा नानक से पहले अगर आप देखें तो बाबा फरीद की भी जो पोइट्री है वो भी एक मिस्टिकल जो लिटरेरी जो रिवायत है वहां से आती है। जब वहां पे आपको ये वननेस ऑफ जेंडर जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसका एस्पेक्ट है कि जो गॉड है, जो खुदा है, गॉड इज रिप्रेजेंटेड एज अ हस्बैंड और अ मेल, या कृष्णा या इवन रांझा। सो रांझा और कृष्ण या हस्बैंड becomes a symbol of God, and then you have the Sufi saint who is a male himself, but approaching God, approaching Ranjha as either he, or approaching Krishna as either Radha, or approaching her husband as a wife. आपको ये जो एक थीम है, ये आपको बाबा नानक की पोइट्री में भी मिलेगी, ये बुल्ले शाह में मिलेगी, फरीद में मिलेगी, और ये पूरी पंजाबी जो एक सूफी रवायत है उसके अंदर बहुत एक गहरी ये है चीज है। तो आप देख लें कि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक जेंडर जो है वो एक डायनामिक है कि you lose your own gender identity in your love for God, and then God himself then identifies a certain gender. Having said that, of course, and this is अगर आप पूरी पंजाबी सूफी रवायत देखें तो उसके अंदर आपको बहुत कम जो है वो फीमेल पोएटिस्ट मिलेंगी। I think Piro Preman is perhaps the first पंजाबी सूफी पोएट जो पोएटिस्ट, पर उसके अलावा एक जेंडर डोमिनेंस तो है, वो तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, उनके स्ट्रक्चर्स थे जिनके अंदर से ये सारे सूफी पोएट्स सेंट्स निकले हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कुलजीत जी बात कर रहे थे कि वी कैन यूज दैट फिलॉसफी and sort of and link it to our contemporary times and make it more egalitarian and make it more gender sort of like more gender neutral, more gender equal perhaps. So that's having, so I mean, yeah, I mean, it's a complicated answer to I think what you were saying.
Yeah, that's interesting. Specifically, Kuljit ji, when I quote Baba Nanak's saying or shabad on women, where he says, "Bhande hi bhand upche, bhande bhaj na koi, Nanak bhande bhara eko sacha soi." That's a very interesting and a very strong message, a kind of a metaphor, a kind of a sarcasm. What is your interpretation about it and how it applies to the contemporary world? Yeah, I think जब वो बाबा नानक कह रहे हैं कि सो क्यों मंदा आखिए, जिसने राजाओं को जन्म दिया है उसको आप मंदा कैसे कह सकते हैं? तो आई थिंक बाबा नानक क्लैरिफाइज हिज पोजीशन कंप्लीटली कि वो जेंडर इनइक्वालिटी में तो उनका कोई, आई मीन ही कंप्लीटली डिसएग्रीज ऑन दैट फ्रंट कि एक जेंडर दूसरे से ऊंचा है। वो बराबरी में तो भरोसा है ही उनका। इक्वालिटी आई थिंक कम्स नेचुरली टू नानक, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में खासकर जो पूरा एक कास्ट सिस्टम का जो डोमिनेंस था उसको वो अटैक करते हैं। हम जानते हैं बचपन के काफ़ी सारी कहानियां जहां पर उनके जो सवाल हैं वो अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट सवाल हैं विद रिगार्ड टू द आइडिया ऑफ सुपीरियॉरिटी एंड सबॉर्डिनेशन विद रिगार्ड टू कास्ट सिस्टम। और उसके बाद जब बात जेंडर की आती है तो बहुत ही क्लियरली बाबा नानक अपनी वर्सेस में कह रहे हैं कि जिसने राजाओं को जन्म दिया है उसको आप मंदा कैसे कह सकते हैं। और अगर आप उनकी आरती को सुने तो उसमें बाबा नानक की आरती में एक बात आती है कि धरती को वो माता कहकर रेफर करते हैं। हाँ, और वो आगे ये भी हम सब लोगों को राय देते हैं कि अगर माता को की सेवा ना करी तो डिसरप्शन होगी। हाँ, और वो आई थिंक एनवायरनमेंट, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं उस कोट को बहुत बार यूज भी करते हैं। पवन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत, तो कितना कितना तवज्जो दे रहे हैं तीन चीजों को। और सबसे पहले पवन को लेकर आ रहे हैं और उसको गुरु कह रहे हैं, और उसके बाद पवन गुरु पानी को पिता कह रहे हैं और धरती को माता कह रहे हैं। तो और उन तीनों की सेवा संभाल को अर्ज भी कर रहे हैं। आई थिंक बराबरी तो काफ़ी लेवल पर नानक की बानी में भी दिखती है। और हम एज लर्नर्स, एज फॉलोअर्स वैसे वर्ड ठीक नहीं है नानक के लिए, एज समबडी हु लव्स नानक, जब जैसे ही उनकी बानी को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी पोइट्री को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक एहसास होता है कि कहीं पर गैर बराबरी की तो बात नहीं, रादर नामंजूर है नानक साहब को किसी भी लेवल पे, चाहे वो जेंडर हो, चाहे कास्ट हो, या और भी कोई बात हो। एक कहानी बचपन से ही सुनते आए कि एक गरीब लालू था, उसके घर गए और उसकी रोटी खाने ही लगे थे, तो फिर बड़ा सेठ आ गया, बोला मेरे घर चलिए, यहाँ तो ब्राह्मणों ने रोटी बनाई है स्नान करके। तो दोनों की रोटी को जब निचोड़ते हैं तो एक से लहू आता है, दूसरे से दूध आता है। कहानी है, हो सकता है मालूम नहीं लहू आया हो या ना आया हो, इट्स इररिलेवेंट, बट उसके सिंबल्स, उसके मेटाफर्स बहुत कुछ रेफर करते हैं। आई थिंक वो बराबरी का जो वो पूरा आइडिया है इन कहानियों में हमें बीच बीच में स्प्रेड हुआ दिखता है। तो या आई थिंक जो भी नानक को मानता है, मुझे ऐसा लगता है उसका इस इनइक्वालिटी में भरोसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। That's interesting. How Baba, from the point of view Baba Nanak, everything
is a metaphor where he uses a metaphor to talk about equality. Okay, Harun, specifically, I would like to know something from the other part of the border. Baba Nanak के जो शब्द हैं, they are still used, called kalam, and they are still alive. People recite them. And it's beyond faith. It's beyond the culture. How these compositions of human value are part of the culture? I would like to know something like that. जी, it's a great question. एक तो जो पुरानी रिवायत है वो ये थे कि आपके जो मुसलमान जो रुबाबी थे, जो एक पूरी रिवायत भाई मर्दाना से चलती आ रही थी, वो ये थी कि पुराने गुरुद्वारों में, इवन एट गोल्डन टेम्पल, जो आपके रुबाबी होते थे वो मुसलमान फैमिलीज होती थी, एंड दे नेवर कन्वर्टेड. I mean, भाई मर्दाना never converted. He still remained Muslim, but was also a follower of Guru Nanak and was a Sikh. Hence, तो एक जो फिर पार्टीशन के बाद अनफॉर्चुनेटली जब हालात ऐसे हो गए, तो जो मुसलमान रबाबी जो है अमृतसर से या बाकी एरिया से जब वो आए, तो कुछ रवायत जो है उन्होंने जो है उसको जिंदा रखा. गुलाम हुसैन का आपसे भी मेरा जिक्र हुआ था रिसेंटली, बाबा जी हैं वो तो फौत हो गए हैं, वो रबाबी थे जिनकी फैमिली जो है पिछले आई थिंक 100-200 साल से जो है वो ग्रंथ कीर्तन करती थी गोल्डन टेम्पल में और अमृतसर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में. तो उन्होंने वो रवायत जो है वो जिंदा रखी. आई थिंक एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि करतारपुर कॉरिडोर के बाद एक पब्लिक लेवल पे, शायद इससे पहले पाकिस्तानी एक मेन उस पे डिस्कोर्स कभी बाबा नानक का नहीं हुआ, पर करतारपुर क्योंकि एक इतना बड़ा वाकया था पाकिस्तान के लिए भी, तो बहुत से अखबारों ने, रेडियो ने, टीवीज ने बाबा नानक के ऊपर शो किए, उनके ऊपर बातें की. तो तब जो है पहली बार आपको जो है वो मेन रेडियो के ऊपर या टीवी के ऊपर जो है बाबा नानक की जो है बानी सुनाई देना शुरू हुई, which was a very very interesting change. पहले कभी इस तरह किसी नॉन मुस्लिम को इतना इम्पोर्टेंस फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी शायद नहीं मिली. तो बेसिकली दो चीजें हैं कि एक तरफ स्टेट की एफर्ट्स होती हैं, जो स्टेट जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी के हवाले से स्टेट क्या करता है. तो स्टेट के डिस्कोर्स में अभी बाबा नानक के से पहले कभी किसी नॉन मुस्लिम को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली. वो तो एक प्रॉपर एक स्टेट का अपना एक नैरेटिव था, बट फोक लेवल पे जो आप बात कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं वो रवायत जो है थोड़ी बहुत जिंदा है, क्योंकि एक कल्चर बड़ा डिफरेंट था. स्टेट चाहे जो मर्जी कर ले, वो ओवर टाइम लगता है उस कल्चर को, एक तो उस कल्चर का मर्डर करने में, और कल्चर जो है वो रिवाइव या वो मोल्ड अपने आप को चेंज कर लेता है टाइम के साथ. तो वो रिवायत जो है कुछ है इसी तरह, कुछ जो है कवाल है फॉर एग्जांपल, जो थोड़े से जरा जो मोर इक्लेक्टिक जो है वो उन्होंने रिवायत जो है जिंदा रखी. तो कहीं ना कहीं वो फोक लेवल पे रिवायत जिंदा थी, पर आई थिंक जब ये एक लार्जर जब स्टेट की तरफ से स्पेशली करतारपुर के बाद चीजें चेंज होना शुरू हुई, तो आई थिंक देयर इज अ स्लाइटली मोर एक्सेप्टेबिलिटी. And now I think what is also happening is that because the commercial aspect is coming in, right? Because thousands of Sikh pilgrims come to Pakistan every year, which means that it is actually a big commercial stake. So you will see, and I think I've also seen the many Muslim Kabbals, for example, who were 20 years ago never sing Baba Nanak's Bani, will now do it because it is commercially more viable to do so. So it's also and we can be very romantic about it, but there's also capitalism and how that works around it. That's interesting, and how a folk tradition still continues, and how Kartarpur corridor actually helped reaching mainstream people through compositions of Baba Nanak. कुलजी जी, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं. कल्चरली बाबा नानक से आप कनेक्टेड हैं. कहाँ तक उनकी पोइट्री आपको कंटेम्प्रेरी राइटिंग में टेक्निकली और इमोशनली हेल्प करती है? मैंने तो बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी पीसेस पढ़ता हूँ, तो वो मुझे बात करते करते पढ़ते हुए एको करते हैं कि ये तो सारी बात ही काफ़ी पीछे से चल रही है. जैसे एक मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को शायद क्लियर कर पाऊँ. मैं एक क्लाइमेट चेंज पे प्ले बना रहा था जिसका नाम रखा था पृथ्वी. अब पृथ्वी नाटक आज की सिचुएशन पर, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पर बात करता है. और जब हम बना रहे थे तो हम देख रहे थे कि हम ऐसा क्या मटेरियल है यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोइट्री जो कि हमारी
डिस्कोर्स को सब्सटेंशिएट कर दे। तो बाबा नानक को भी पढ़ा, मैंने तो पहले से ही पढ़ा था, मेरे एक्टर्स ने, मेरे मेरे को डायरेक्टर्स ने, को क्रिएटर्स ने, तो जो गगन में थाल रवचंद दीपक बने, वो पूरी जो बाबा नानक की आरती है, और जैसा पहले भी मैंने कहा, पवन गुरु पानी पिता, वो सब ने हमें मदद की बात को कहने में, हमारी बात को सब्सटेंशिएट करने में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ऑडियंस को बात समझानी हो तो कौन सी ईडियम यूज करेंगे, और जब आपके पास बहुत ही हाइब्रिड मिक्स्ड किस्म की ऑडियंस हो, तो आप अगर बहुत सारी ऐसी बात करें जो कि टेक्निकल है, तो शायद स्किन तक ही रह के बात चली जाती है। और अगर आपको स्किन के भीतर जाना हो तो आपको मेटाफर्स, इमेजेस, सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो बाबा नानक की जो पोइट्री है हमारे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गहरे मेटाफर्स में बात कहती है, और जितनी गहरी बात हो उतना इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है कि मेटाफर का यूज किया जाए। बहुत ही टेक्निकल सीधी सीधी बात करनी हो तो जैसे हमारे कुछ सरकारी महकमे करते भी हैं विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, तो वो हम भी कह सकते थे, लेकिन वो ना स्किन पर ही रह के रुक जाती। बहुत अच्छा नाटक है, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं और निकल लें। बट जैसे ही उस नाटक में बाबा नानक के दो कॉम्पोजिशंस आ जाते थे, तो मुझे लगता था कि दो लेवल पर ऑपरेट होती थी, एक तो म्यूजिक के लेवल पर, और दूसरा बात को कहना कैसे है और कैसे बियॉन्ड द स्किन पहुंचाना है। और उसको अगर आपको अच्छा सिंगर गाने वाला मिल जाए तो वो तो कहीं और ही बातचीत पहुंच जाती है। मतलब मैं देखता था वो नाटक देखते हुए कुछ लोग इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते थे, रो भी पड़ते थे। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद जो स्ट्रेंथ है पोइट्री की वो, और ख़ासकर म्यूज़िक की, क्योंकि म्यूज़िक की एक्चुअली कोई भाषा होती नहीं, वो आपको मदद करता है आपके कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में। और बहुत हीलिंग है उसके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ हीलिंग है। तो ऐसा मेरा पर्सनल एहसास है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 20 से भी ज़्यादा शोज हुए, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और इधर नॉर्थ इंडिया के रीजन में, और हिंदी भाषा में हम करते थे। पोइट्री बाबा नानक की होती थी, तो नॉन पंजाबी भी कनेक्ट कर रहा है। अगर आप पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत कहें तो इतनी बात उसे भी समझ आ रही है, और उसको जब वो गाया जाता था और आलाप भी यूज होता था तो बहुत ही मोमेंट ठहर जाता था, एक थॉट के लेवल पर भी हम ऑपरेट कर रहे होते थे। एक तो ये बात है। दूसरी मुझे लगा कि जैसे दास्तान मैं बना रहा था बाबा नानक की, तो उसमें मुझे ये लगा कि एक तो सोर्स है हमारे पास बानी का, जो बाबा नानक की अपनी राइटिंग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है जिसको हम यूज कर सकें इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट नानक्स लाइफ। तो अल्लामा इकबाल साहब की एक नज्म है, एक लंबी कविता है, उससे हम शुरू करते थे। वो थोड़ी सी उर्दू फारसी शब्द उसमें ज़्यादा हैं, तो कुछ लोग नहीं भी समझ पा रहे होते थे, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन भी कर देते थे बीच बीच में। हमारा दास्तान को जब पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते रुकेगा और उसको बारीकी से एक्सप्लेन करता हुआ भी आगे चलता था। तो मुझे लगा ये इंटरकनेक्शंस और इंटरटेक्सचुअलिटी रिचनेस देती है किसी भी टेक्स्ट को, और फिर जब आप उस टेक्स्ट को एक परफॉर्मेंस में तब्दील करते हैं तो वो टास्क और गहरा हो जाता है। फिर वहां पर डायरेक्टर और पूरी टीम का रोल होता है। एट द सेम टाइम मजेदार बात यह है कि ये सारी पोइट्री इज लोडेड विद मेटाफर्स, और मेटाफर्स जो हैं वो बहुत गहरी बात को आसानी से बताने में आपको मदद करते हैं। तो इस किस्म से हम नेगोशिएट कर रहे थे बिटवीन टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस थ्रू म्यूजिक। और नानक साहब की बात करनी हो तो बिना म्यूजिक के तो बात हो ही नहीं सकती। फिर बिना म्यूजिक के नानक तो अधूरे हैं। वो नानक साहब को कुछ कहना होता था तो मर्दाना साहब को बोलते थे कि
बानी आई है बजाओ, वो रबाब छेड़ते थे और नानक गाते थे। ये इम्प्रोवाइजेशन हो रही हैं। ये देखिए एक सेंस में एज एन एक्टर मैं इसको एक देखता हूँ कि इम्प्रोवाइजेशन हो रही है। और ये इम्प्रोवाइजेशन ऐसी इम्प्रोवाइजेशन नहीं है कि एक दो एक्टर ने कहा अच्छा तुम कुछ बोलो मैं कुछ बोलता हूँ। ये सबलाइम इम्प्रोवाइजेशन हो रही है। ये कहीं और से कुछ डिक्टेट हो रहा है और वो इम्प्रोवाइजेशन में निकल के आ रहा है। और क्या कमाल की बात है फिर उसके बाद जो निकला है, जो उस इम्प्रोवाइजेशन में से लिखा गया है, उसको तो आज हम पूछते हैं। मुझे लगता है पूछना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए जी। Gurjeet ji and Harun, I think we need almost a full day to have a conversation with both of you. Last, before we go on to Q&A, short question to both of you. Gurjeet ji, I'll start with you. Oneness. What is the meaning of oneness in your present profession in terms of processes and people? आई थिंक इस पर मैंने शुरू में थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया था, उसको और एलैबोरेट कर देता हूँ। मैं थिएटर मेकर हूँ, मैं थिएटर प्रोडक्शंस बनाता हूँ। तो मेरे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जितने लोग उस प्रोडक्शन के साथ काम करें, चाहे वो बैक स्टेज हो या म्यूज़िक पे हो या लाइट्स में हो या साउंड्स में हो या कॉस्ट्यूम्स बनाते हों, जो भी लोग हों, उनको कोर आइडिया का सेंस हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिहर्सल्स मैंने 40 दिन कर ली और उसके बाद एक दिन कोई कॉस्ट्यूम पर्सन आएगा, वो कॉस्ट्यूम बना देगा और चला जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्चुअली उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी पोजीशन से किसी बात को कह रहा हूँ, तो शायद बात अधूरी रह जाएगी इवन इन कॉस्ट्यूम्स। सिमिलर तरीके से जिसने लाइट्स देनी हो, टेक्निकली तो जो लाइट्स डिज़ाइनर हैं वो जानते हैं इस बात को कि लाइट की स्ट्रेंथ और लाइट की वीकनेस कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर इमोशन। आप नवरस की बात कर रहे थे, आप मतलब उस इमोशन को ऊपर भी ला सकते हैं और उस इमोशन को कम्प्लीटली डिमोलिश भी कर सकते हैं जस्ट विद लाइट्स। तो अगर ऐसा नहीं है कि लाइट्स डिज़ाइनर का मतलब है फेड इन एंड फेड आउट, लाइट्स डिज़ाइनर का मतलब है उस थॉट के साथ कितना लिट करना है और कैसे उस लाइट को रिड्यूस करना है और नया सीन स्टार्ट करना है। तो जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ, द प्रोसेस ऑफ थिएटर मेकिंग, तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ मेकिंग इज completing and reaching a point where we say this is now one whole, this is not compartmentalized. So I think theater by default, by its very nature, is an idea to reach the state of oneness. So I think that's where I come from. That's how I look at it. Yeah. Arun, you are a journalist, you are an author, storyteller. So how, what is this whole, that oneness in your profession? Ji, so I'll keep a very simple and sort of very short answer. I think for me, oneness is essentially because as a storyteller, I'm telling stories of people. I'm telling their stories, and to tell their stories, you have to first hear their stories and feel their stories. So I think there's a couple of things. I think for me, oneness really means कि आप at a human level, आप चाहे जितनी भी जिस ethnicity, race, culture, caste जिससे भी हो, at a human level, there is more that unites us. There is more that is common between us, between different genders, between different sexualities, between different castes, religions. Then there are differences, and I think keeping that perspective, I think for me, is something that oneness really helps me. कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप दो humans के level पे बात कर रहे हैं, and there is much more in common than we have than the colors of our skin or religion and whatever. I think that really helps me. And I think also like really respecting other people's stories, for example, like that, thinking of those stories as my stories, thinking and telling those stories, or writing a story as I would want somebody to tell my story. Essentially just putting myself, so essentially viewing everybody through my lens, and not from an egoistical lens, but actually from a respective, from a respective point of view. If I expect that kind of respect for my work and for my my story, then that is my duty, my job, to also give that kind of respect to another person and their story. And I think that for me is essentially what oneness means. Okay, that's an interesting thing, that being at the level of humans and
when you respect, you become part of others, like Kuljit ji said in the beginning, and being part of others is when you respect, expect the same respect. So I'll just take up audience questions and there has been certain renovations in certain gurudwaras because people being um, uh, expats from various countries invested and mobilized. The government mobilized, and there was a start of renovating places associated with Baba Nanak. What is the way forward next? Where do you see it going next? आई फील लाइक आई थिंक और गुरुद्वारे भी रेनोवेट होंगे. आई थिंक काफी, मतलब कि मेरी जब से फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरी बुक आई है उस टाइम आई थिंक शायद 10 गुरुद्वारे थे, और उसके पिछले 10 साल में आई थिंक या उससे कम टाइम पे 10 गुरुद्वारे और रेनोवेट हो गए हैं. एंड आई फील लाइक विद मोर पिलग्रिम्स कमिंग और से और गुरुद्वारे रेनोवेट होंगे. आई डू फील लाइक द कमर्शियल एस्पेक्ट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सी टूर कंपनी जो है वो खुल गई हैं पाकिस्तान में, जो कि स्पेशली केटर करती हैं सिख कम्युनिटी को. आई थिंक वो एक उस तरह की चीज होगी. आई थिंक रेनोवेशन के अंदर एक जो बहुत बड़ी डिबेट है, आई नो कि दैट डिबेट जो है वो वेस्ट पंजाब में भी होती है और ईस्ट पंजाब के अंदर भी होती है. वो डिबेट ये है कि हम गुरुद्वारे जो हैं, स्पेशली जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, ये दो चीजें हैं. एक तो ये सेक्रेड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सेक्रेड रिलीजियस स्पेसेस, बट देन दे आर आल्सो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स. ये आज से 200 साल पुराने बने हुए हैं, 300 साल पुराने बने हुए हैं, या 150 साल पुराने बने हुए हैं. A lot of times what happens is, इन वो रिवायत शुरू हुई ईस्ट पंजाब में और वेस्ट पंजाब में भी आ गई, कि जो गुरुद्वारे जो हैं जब वो रेनोवेट होते हैं तो उनका जो एक ट्रेडिशनल जो इनका हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, और एक बिल्कुल एक नए उसको शाइनी बिल्डिंग तौर पे बना दिया जाता है. तो आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने की जरूरत है, और वहां पे थोड़ा सा हमें एक अप्रोच अपनी चेंज करने की जरूरत है कि हमें along with looking at these spaces as sacred spaces, we also need to see them as historical spaces and respect that architectural tradition जो वहाँ पे जो एक पुरानी थी आर्टिजन जो ट्रेडिशन थी, फ्रेस्कोस मिटा दिए जाते हैं, पुरानी जो विंडोज हैं उनको खत्म कर दिया जाता है. So renovation is not the goal, but also like respectful renovation, historical renovation, and I think that should be the step moving forward, which unfortunately is not happening on either side of Punjab. I think interesting. We need to maintain that cultural dialogue which is there in the heritage that's in the buildings also. Kuljit ji, question for you. Your love for teaching of Baba Nanak is evident in every word you speak. Today's time, where there are so many challenges that many of us are facing, how do you think his teachings can be applied to our day-to-day existence? Well, each and every bit of us in a profession, whatever profession that is, where we work, needs, I think, empathy like Nanak. So we sometimes tend to forget that there are a lot of struggles the other is facing, and we tend to really go heavy on them, people who work with us. I think empathy is something which we all need to cultivate. And if we look at how Baba Nanak is operating and his dialogues with his oppositional forces, we would learn that. I mean, the kind of communication and the kind of idiom Baba Nanak used is not of ridicule. कहीं पर भी बाबा नानक की बाड़ी में आप रिडिक्यूल नहीं देखेंगे, मुझे ये बहुत पसंद आता है. सरकाज़म नहीं देखेंगे. बाबा नानक ने गोष्ठियां करी, डायलॉग्स करे, और डायलॉग्स में भी he was winning over others only through love, only through empathy. कहीं पर भी उन्होंने रिडिक्यूल नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, get lost. कहीं पर भी. Just imagine the kind of restraint and patience and empathy Baba Nanak would have sort of shared with even oppositional forces. मतलब क्या क्या नहीं हुआ. जेल में बंद कर दिया गया, चक्की चलवाई गई,
लोगों ने कहा गांव के बाहर ठहर जाओ, बहुत यहाँ सूफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां फूल रख देते हैं। कहानी है ना, जब एक सूफी गांव के बाहर बाबा नानक रुके तो अंदर से, सूफियों का गांव था, उन्होंने बर्तन भेजा और बर्तन बिल्कुल भरा हुआ था दूध से। मर्दाना देखते हैं बाबा नानक को कि ये क्या है। बाबा नानक क्या करते हैं, बगल से एक फूल तोड़ते हैं और दूध के ऊपर उस बर्तन के रख के कहते हैं कि वापस ले जाइए। मर्दाना को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, तो वो बाबा नानक से पूछते हैं कि ये क्या मसला है। तो बोले अंदर सूफियों का जो हेड था उसने कहा यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। तो बाबा नानक क्या कह रहे हैं कि मैं फूल की तरह हल्का हूँ, जगह नहीं लूंगा, लेट मी कम इन। I mean, look at the communication which Baba Nanak is giving us. मतलब as a playwright, as a writer भी मुझे लगता है ये कमाल की चीजें हैं। हम रिडिक्यूल पे खड़े होते हैं आजकल। I mean, if I look in my profession, हर जगह पर रिडिक्यूल चलता है, हर जगह पर sarcasm चलता है। I think if we wish to learn something from Nanak, we can replace ridicule and sarcasm with empathy, love एंड अंडरस्टैंडिंग। सब लोगों की स्ट्रगल चल रही है। ये 2 साल जो पिछले इस धरती ने देख लिए हैं कोविड के, इसके बाद तो दूसरे की स्ट्रगल को नमस्कार करिए और देखिए हर आदमी कहीं गड़बड़ में है, सफर कर रहा है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली और जाने क्या क्या। तो आई थिंक एम्पैथी बहुत है बाबा, बहुत बहुत गहरी एम्पैथी है, वो सीखा जा सकता है। Great. I think it's a point that you've clarified that Baba Nanak is not about ridicule. It's about metaphor of love and empathy. So that's a interesting closing remark. With this, I would just close this session, and I would just highlight the points. It was a really insightful session where we heard that how Baba Nanak is loved across border as a sacred man by a common man here, and he has left us with a consciousness that kahin mein gair barabari to nahi kar raha. This was really interesting, from idioms to metaphors to images in your present works, Kuljit ji, to Harun experiencing Baba Nanak through because he was so passionate about his work, and that's what Baba Nanak had to say, that whatever you do, work really hard and be passionate about it, and then you share it with the world. That's why those 20 rupees have never got over, because everyone is sharing and taking his part in the share. So really, I'm really thankful to both of you, Harun, taking out time at early hours from across the globe, to Kuljit ji for sharing your experiences, and I would also like to thank the team who has been tirelessly working backstage and trying to compile it, compose it, and make sure that we stream it perfectly fine. So special thanks to both of you and the team. And I would take the opportunity to talk to people about the exhibition. These talks are a prelude to the exhibition, which are based on couplets of Baba Nanak, Kabir Das, and Sheikh Farid. The exhibition is scheduled between 25th and to 28th of November at Visual Arts Gallery, India Habitat Center, New Delhi, India. 24th November is for private viewing. Do join us for the next conversation on 11th November, Thursday, 6 p.m. India Standard Time. And the topic is Experiences of Oneness through docu-series, Allegory or a Tapestry of Guru Nanak's Travel, with Amardeep Singh, moderated by Professor Nayan Xiao. Thank you everyone for joining us across the globe, and thank you both the speakers.